Starting. Yeah, I'm sharing my screen. Yes, can you see my screen? Hello? Yes, sir. Yes. Okay, so have you done the practice of study class, PR, PO, auto PO, manual PO, Yes. receiving, multiple shipment? Yes, sir. Okay, multiple shipment and all, right? Have you done that, right? Yes, sir. Okay, so guys, do you have any open issues, queries regarding that, or you are comfortable? Hello, Whatever, sir. everyone? If I'm asking Yes, any sir. question, it's for everyone, right? Not for specific. If I put the name, then it is for particular person. Otherwise, if I'm asking question, it's for everyone. Okay, so you are more comfortable on the things, right? PR, PO, manual PO, auto create PO, multiple shipment, direct delivery, standard delivery, rights. So today we will see the types of PO. So guys, in Oracle ERP, there are 4 types of PO, like standard PO, plan PO, blanket purchase agreement, contract PO, right? तो standard PO what we do, ये notes में आप ऐसे ही बना लोगे, ठीक है? In standard PO what we do, there are 4 types of purchase order in Oracle ERP. Always remember, interviewer will ask you the questions, how many types of purchase orders? So you should very clear. So there are 4 types of purchase order. Like first one is standard PO, second one is plan PO. PO means purchase order, right? थर्ड वन इज ब्लैंकेट पीओ. ब्लैंकेट पीओ को बीपीए भी बोलते हैं, ब्लैंकेट परचेज एग्रीमेंट, राइट? एंड फोर्थ वन इज द कॉन्ट्रैक्ट पीओ, राइट? सो ब्लैंक स्टैंडर्ड पीओ में क्या होता है, देखो डेफिनेशंस आपको नोट्स में मिल जाएंगी, बट अगर मैं वैसे देखूं तो इन स्टैंडर्ड पीओ, ये देखो मैंने समराइज करके रखा है, इसी से आप अपनी डेफिनेशंस बना लोगे. तो अगर आपको बताना है तो सबसे पहले बताओ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परचेज ऑर्डर इन ऑरेकल, right? In first one standard PO, second one is plan PO, third one is blanket PO, and fourth one is the contract PO, right? Standard PO is what? Standard PO, if we know the item, if we know the quantity, if we know the price, if we know the payment terms, if we know the need by date, if these conditions are fulfilling, it means it's a standard purchase order. Guys, clear? देखो ये टेबुलर फॉर्म आप बना लोगे, इसी से आप अपनी डेफिनेशंस बना लोगे. ये बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने बनाया है, ठीक है? ये मैं अपने टाइम के नोट्स बता रहा हूं आपको, जब मैंने समराइज करके मुझे डेफिनेशंस भूल जाता था, देन आई समराइज इट, राइट? सो इफ वी नो द आइटम्स, क्वांटिटी, प्राइस, पेमेंट टर्म्स, नीड बाय डेट, इट मींस इट्स ए स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर. अगर मैं किसी परचेज ऑर्डर में मुझे आइटम पता है, क्वांटिटी कितनी खरीदनी है ये पता है, उसका प्राइस पता है, पेमेंट टर्म्स पता है. पेमेंट टर्म्स मतलब 30 डेज में दूंगा, 60 डेज में दूंगा, 90 डेज में दूंगा, इमीडिएट दूंगा, वट एवर द पेमेंट टर्म्स, राइट? एंड इफ वी नो द नीड बाय डेट मींस when we need the material. For example, I am raising the purchase order, right? I know the item A is there, I know the quantity, for example, quantities are 100, I know the price may be the $10, $5, $15 maybe. Payment terms is 30 days, right? And need by date is, if I am creating the purchase order today and I need the material on 30th of July, after 2 days I need the material. If I know these 5 conditions, it means it's called a standard purchase order. Guys, clear? Yes, sir. ठीक है? Clear. जो 5 चीजें हम ये देख रहे हैं, ये 5 चीजें अगर हम जानते हैं तो मतलब दैट्स ए स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर. सेकंड आते हैं प्लान पीओ, कि मैंने प्लान कर लिया. ओके, सो इन प्लान पीओ व्हाट वी नो if we know the items, if we know the quantity, if we know the price, if we know the payment terms, but we don't know the need by date. If these conditions are fulfilling, it means it's a plan PO. Example, मुझे भाई आइटम चाहिए, मुझे आइटम पता है, आइटम ए चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, 2000 क्वांटिटी चाहिए, पता है, उसका प्राइस पता है मुझे, $10 पर पीस है, राइट? पेमेंट टर्म्स पता है, मैं आपको 60 डेज में पेमेंट टर्म दूंगा, बट मुझे कब चाहिए इट इज नॉट क्लियर. खरीदूंगा आपसे, मटेरियल खरीदूंगा, ठीक है, ये आइटम खरीदूंगा, इतनी क्वांटिटी खरीदूंगा, ये प्राइस होगा, ये पेमेंट टर्म्स है, बट कब खरीदूंगा, नीड बाय डेट मुझे नहीं पता है. If this condition is fulfilling, it means it's a plan PO. It should be very clear. Clarity आपकी रहनी चाहिए कॉन्सेप्ट में. It's a plan PO. Right, guys? Anyone, any open question regarding that?
भाई पूछो, वन No, sir. वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, No, no. ठीक है। बाद में आप पूछोगे, जब यहाँ ध्यान नहीं लगाओगे कहीं और लगाओगे फिर पूछोगे तो आपको दिक्कत होगी। अभी आप 10 बार पूछो मुझसे, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ आपको कि आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट हो यू कैन इमीडिएटली स्टॉप मी, ठीक है। तो इफ वी नो दीज टर्म्स but we don't know the need by date, it means it's a planned PO. What is blanket PO or BPA? BPA is a blanket purchase agreement. We called as a blanket purchase agreement. First we create BPA. When we need the material, then we do release. पहले BPA बनाते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई मुझे ये मटेरियल चाहिए, और जब मुझे मटेरियल जरूरत होती है तब मैं उसके BPA के बेसिस पे रिलीज करता हूँ। रिलीज एक डॉक्यूमेंट होता है, वो हम लोग करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। रिलीज करता हूँ। स्टैंडर्ड PO तो हमने कितने सारे बनाए हैं, कल ही बनाए थे हमने 3-4, और आप लोगों ने भी बनाए होंगे स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, राइट गाइस? हेलो, जी सर। आप लोगों ने स्टैंडर्ड Yes, PO sir. बनाए होंगे, राइट? ठीक है। तो Yes. Yes, sir. BPA क्या होता है? BPA में इफ वी नो द आइटम, if we know the price, if we know the payment terms, but we don't know the quantity and we don't know the need by date, then it is called as a blanket purchase agreement. इसमें एग्रीमेंट हो जाता है कि फॉर एग्जांपल मुझे आपसे ये आइटम ए चाहिए, उसका ये प्राइस है और ये पेमेंट टर्म्स है, क्वांटिटी कितनी चाहिए, नीड बाय डेट कितनी, कब वो चाहिए, वो हम जब रिलीज जब चाहिए होता है तब हम उसके बेसिस पे रिलीज करते हैं। तब हमें मटेरियल जब चाहिए होता है तब हम रिलीज करते हैं और मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्लैंकेट परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है, सपोज मैंने कहा कि आपसे मैं 10 लाख रुपए का माल लूंगा, ये 2 आइटम लूंगा, ठीक है, इतना उसका प्राइस होगा, इतना ये इसका पेमेंट टर्म है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, इमीडिएट, वट एवर द पेमेंट टर्म्स, राइट। ये मुझे चाहिए, बट मुझे कब चाहिए और कितनी क्वांटिटी चाहिए वो मैं रिलीज टाइम पे लिखूंगा। जब रिलीज डॉक्यूमेंट करूंगा, जब मुझे मटेरियल चाहिए होगा तो मैं रिलीज करूंगा और पेमेंट वो मटेरियल ले लूंगा। रिलीज मतलब सपोज मैंने 10 लाख का BPA बनाया और उसमें डाल दिया मैक्सिमम 10 लाख, मिनिमम 1 लाख, मतलब मैं 10 लाख तक का आपसे माल लूंगा ये आइटम्स, ठीक है। जब भी मैं रिलीज करूंगा तो मिनिमम 1 लाख का करूंगा, मैंने मिनिमम रिलीज 1 लाख डाल दिया। जब भी मटेरियल चाहिए होगा तो मैं रिलीज डॉक्यूमेंट मेरा 1 लाख से लेस नहीं होगा, वो 50,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। अभी हम BPA बनाएंगे तब आपको और क्लियर होगा। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट PO होता है कि भाई इफ वी डोंट नो द आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, पेमेंट टर्म्स, नीड बाय, कुछ भी मुझे नहीं पता है, बस आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई 10 लाख का मटेरियल, मैं 10 करोड़ का मटेरियल आपसे खरीदूंगा, ठीक है। क्या आइटम है, क्या क्वांटिटी, क्या प्राइस, क्या पेमेंट टर्म्स, नीड बाय डेट, वो सब कुछ नहीं पता है। वो जब मुझे चाहिए होगा मटेरियल तो कॉन्ट्रैक्ट PO के बिहाफ पे मैं स्टैंडर्ड PO रेस करूंगा और मटेरियल खरीद लूंगा। गाइस क्लियर और नॉट? एनीवन, Clear, sir. एनी ओपन क्वेश्चन? Yes, ये sir. Yes. ये टेबल आपके उसमें नोट्स में बनी होनी चाहिए और ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको बताना। BPA पहले बनाते हैं, BPA के बेसिस पे फिर जब हमें मटेरियल चाहिए होता है तब रिलीज करते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट PO बनाते हैं, कुछ भी हम नहीं जानते हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जब मटेरियल चाहिए तो उसके कॉन्ट्रैक्ट PO के बेसिस पे मैं स्टैंडर्ड PO रिलीज करता हूँ, ठीक है, और मुझे मटेरियल मंगा लेता हूँ। तो अब हम सिस्टम पे जंप करते हैं और BPA बनाते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? कल PR PO, मैनुअल PO, ऑटो क्रिएट PO सब बनाया? किसी को कोई Yes, sir. दिक्कत? यार आप लोग Sir. कितने होशियार हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है किसी को। या तो आप बहुत पढ़ाकू हो या तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, बीच के तो हो नहीं। प्रॉब्लम क्वेरीज उन्हीं को आती हैं जो कर रहे होते हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं। 2 लोगों को नहीं आती क्वेरीज, या तो जो बहुत पढ़ाकू हैं या जो बिल्कुल पढ़ाकू नहीं है। ऑपरेशंस, भाई आप लोग बच्चे नहीं हो, मैं सिर्फ बता ही सकता हूँ, दैट इज माय ड्यूटी, राइट। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। मैं रोज सबका ट्रैक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बता सकता हूँ। आई होप कि यू पीपल आर वेल मैच्योर और आप लोग प्रैक्टिस दबा के कर रहे होगे 2-3। कितने कितने घंटे आप लोग पढ़ते हो रोज? कितने कितने घंटे दे रहे हो? नमन, 2.5 से 3 घंटे। पूरा असाइनमेंट डे टू डे करते हो? असाइनमेंट कर लेते हो डेली का डेली? Yes, sir. 2 घंटे। 2 घंटे। Yes, तो sir. मुझे नाम पूछने दो, रुक जाओ। जैसे जैसे आदित्य, तुम क्या करते हो? आदित्य 1 TCS, आदित्य TCS कितना करते हो?
हाँ 2 घंटे सर, 2 घंटे 2 घंटे में हो जाता है असाइनमेंट पूरा? हो जाते हैं सर। रिवीजन करते हो? रिवीजन? रिवीजन हाँ, ठीक है। नोट्स वगैरह सब बना। नमन, व्हाट अबाउट यू? यस सर। पढ़ते हो? सर 2 to 3 hours लगभग। यस सर। डेडिकेटेड दे रहे हो ना? एकदम सर। वेरी गुड। आदित्य संडियाल, हाँ, आदित्य सैंडी जो भी जी हो, सर। क्या हाल जी है सर, तुम्हारे? 2 घंटे दे रहा हूँ सर। हाँ 1.5 से 2 ज्यादा कम मत कर देना, 1.5 से कम मत कर देना, नहीं तो तुम जी उसको जी सर, जी सर। आधे घंटे में ले आओ खींच के। अनमोल भाई क्या हाल है तुम्हारे? नहीं सर। बढ़िया हो सर। बताओ मैं भाई कर क्या। रहा हूँ, मैं तो 2-2.5 घंटे कर रहा हूँ, प्रीवियस भी करता हूँ तो टाइम ज्यादा लगता है। तो प्रीवियस तो दो रिवीजन के घंटे लिए है ना? हाँ सर, वो भी करते हैं ना, प्रीवियस रिवीजन भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, और कौन बचा? और है इमरान भाई। इमरान भाई, इमरान भाई बोलो यार, आप बोलते नहीं हो, बड़ा मुझे इरिटेशन हो जाता है फिर। इमरान, यू दे गैस, कैन यू सर हियर मी? सर मैं हूँ सर, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। नेटवर्क सही करा लो, कैसे काम चलेगा सर? ऑफिस में फंसा हूँ, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई। अच्छा ये बताओ इमरान भाई, कुछ कर रहे हो रिवीजन विजन? जी सर। हाँ रिवीजन कर रहा हूँ सर, मैं भी पर्चे में पूरा किया, डेली 2.5 से 3 घंटे कर रहा हूँ मैं। मतलब डेडिकेटेड होके कर रहे हो ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर। मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ ना आपसे पढ़ रहे हो अच्छे से? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। भैया आप लोग मेरी उम्मीदों पे पानी मत फेरना बस, ठीक है? अगर मैं आप पे आंख बंद करके विश्वास कर रहा हूँ तो मेरे विश्वास को मत तोड़ना, ठीक है? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आप पे विश्वास कर सकता हूँ और मेरे नहीं पास सर। कुछ भी नहीं है, माइक्रो लेवल का ट्रैकिंग नहीं कर सकता हूँ मैं, राइट? ओके, और कौन बचा? सच्ची भाई, बताओगे? यस सर। क्या हाल है आपके? आप तो बहुत कम बोलते हो, बढ़िया सर। बताओ। मेरा भी 2 घंटे तक हो जाता है सर, वीडियो देख लेता हूँ और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। डेली का डेली असाइनमेंट करते हो ना? यस सर। कोई इसमें चैलेंज तो नहीं है? नहीं सर, कोई इशू नहीं सही है। अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड। और सर कौन बचा? सौरभ भाई। सौरभ भाई, जी सर। बता दो अपने बारे में भी थोड़ा हालचाल, जी सर, करता हूँ। कितना पीछे करता? इन्वेंटरी में टाइम लगता है मुझे, बस अभी भी थोड़ा अबे तो टाइम इन्वेंट्री लगता तो, अभी तो इन्वेंट्री तो अभी खत्म हुई है ना, उसमें तो टाइम लगेगा ही, है। है? उसमें ही टाइम लगता है मुझे, वो भूल जाता बार बार स्टेप। गर्लफ्रेंड का नाम भूलते हो, बताओ? मैं तो नहीं भूला आज तक, 8 साल हो गए, तुम कैसे भूल जाते हो? भैया पढ़ा करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? नहीं तो मैं पेलूंगा बहुत दबा के, जी सर। ठीक है? ये मत सोचना मैं पेलूंगा नहीं तुम्हें, पेलने में कोई कसर नहीं करूंगा। अगर इंटरव्यू में बता पाए, अभी इन्वेंट्री का मैं इंटरव्यू लूंगा आप लोगों का 1-2 दिन में, क्वेश्चंस पूछूंगा ऐसे 1 to 1 रैंडमली, तो आपको पता होनी चाहिए चीजें, अगर पता नहीं हुई तो ध्यान रखना, फिर मैं बिल्कुल सबके सामने उतारूंगा। देखो क्या है, देखो एक सिंपल सी चीज है गाइस, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैन लुक्स हैंडसम व्हेन ही वर्क हार्ड एंड अनडिसेंट। आदमी तभी सुंदर लगता है जब वो मेहनत करता है और पैसा दबा के कमाता है, और वुमेन्स लुक्स हैंडसम हैंडसम ब्यूटीफुल जब वो अच्छे से सस्ती है, तैयार होती है। तो आदमी की डेफिनेशन यही है, वो कमाते हुए और मेहनत करते हुए अच्छा लगता है। आप भी कितना क्रीम लगा लो, कितना पाउडर लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कितने गोरे हो, कितने काले हो, कितने मोटे हो, कितने पतले हो, डजेंट मैटर। आप मेहनत करोगे और दबा के कमाओगे ना पैसे, तो आप ऑटोमेटिकली हैंडसम लगोगे, ठीक है? तो ये डेफिनेशंस बना लो अपनी लाइफ की, मुझे भी किसी ने बताया था आज से 8 साल 7 साल पहले, ठीक है? मैं फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ आपको। काला गोरा मोटा पतला एक उम्र के बाद सब बेकार हो जाता है, आप अच्छे से मेहनत करोगे और दबा के पैसे कमाओगे ना लाइफ में, तो
तो आप ऑटोमेटिकली स्मार्ट लगोगे, ठीक है। ओके, सो वी विल सी द ब्लैंकेट परचेज एग्रीमेंट, राइट गाइस। सो दिस इज द परचेज ऑर्डर फॉर्म। सेम नेविगेशन पाथ पे जाना है आपको, कहीं नहीं, पीओ पे जाओ, ठीक है। टाइप में आप बीपीए ले लो, ठीक है। सप्लायर ले लो, सप्लायर साइड डाल लो, ओके। आइटम डाल दो, देखो क्वांटिटी का फील्ड डिसेबल हो गया, दिख रहा है। बीपीए लेते ही बस प्राइस पूछेगा, मैंने कहा 10 रुपए, और सब चीजें डिसेबल हो गई, ठीक है। एक मैं आइटम और डाल देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन डाल दी, देखो क्वांटिटी का फील्ड डिसेबल है, राइट। आप टर्म्स में जाओ, गो टू टर्म्स। अब यहाँ पे इफेक्टिव डेट डालो कि मेरा ये बीपीए किस डेट से किस डेट तक वैलिड है। मैंने कहा मेरा ये 28 जनवरी से लेके 27 फरवरी तक मेरा ये बीपीए सॉरी 30 सितंबर तक वैलिड है मेरा, ठीक है। 28 जुलाई से 30 सितंबर तक का अमाउंट मैंने डाला 10 लाख रुपए का बीपीए है। मिनिमम मैंने डाल दिया, जब भी मटेरियल खरीदूंगा कम से कम 50,000 का खरीदूंगा, या कुछ भी डाल दो, मैंने कहा 70,000 का खरीदूंगा, ठीक है। जब भी मटेरियल खरीदूंगा कम से कम 70,000 रुपए का रिलीज बनाऊंगा ही। और मेरी इसकी लिमिट कितनी है, 10 लाख रुपीस, मतलब 10 लाख का मटेरियल मैं इस डेट से इस डेट के बीच में खरीदूंगा, ये दो आइटम्स जो मैंने बीपीए। और जब भी मुझे मटेरियल चाहिए होगा कम से कम 70,000 रुपए का मिनिमम रिलीज करूंगा, उससे ज्यादा कर सकता हूँ बट मिनिमम 70,000 का करूंगा। पेमेंट टर्म्स आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो उसमें कुछ, 30 डेज नेट, राइट। फ्रेट टर्म्स ड्यू, यूपीएस कैरियर, यूपीएस कैरियर आपका यूपीएस है, ठीक है, ये सेव कर दो। 3 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, ठीक है। तो ये मेरा 6826 मेरा बीपीए नंबर है। सिक्स एट टू सिक्स इज माई बीपीए, ओके। अप्रूव करो। अब ये कहीं हायरार्की में लगे हैं, इसके पास कैथरीन बेकर के पास, चलो 6826 है। परचेज ऑर्डर समरी पे जाओ, देखो कहाँ पे 6826 फाइंड करो, प्री अप्रूव्ड, इंक्वायरी में जाओ, एक्शन हिस्ट्री। अच्छा इसके पास पड़ा है, कैथरीन बेकर के पास। अब इसकी आईडी में पासवर्ड रीसेट कर लेता हूँ, क्योंकि इसके पास पड़ा, इसमें सेल्फ अप्रूवल पे नहीं लगा है, तो इसीलिए हम लोग सेल्फ अप्रूवल पे लगा देते हैं कि फटाफट अप्रूव हो जाए। अब इसके लिए मुझे इसका पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। पासवर्ड रीसेट करना आता है किसी को? एनीवन नो द पासवर्ड, हाउ टू रीसेट द पासवर्ड? अरे नहीं आता है तो बोलो। नो सर। नो सर। नहीं सर। यस सर। यूजर मैनुअल उस पे नहीं बताया था, यूजर क्रिएशन में? यस सर। तो किस पे जाएंगे? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सब बताया है, लेकिन इन लड़कों को तैयारी इतनी जबरदस्त कर रहे हैं कि कुछ याद ही नहीं है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे, यूजर पे जाएंगे, और किसी का पासवर्ड मत रीसेट कर देना, परेशान हो जाए बंदा, ठीक है। FN F11। अब यहाँ पर्सन पे उसका नाम डाल देंगे, कैथरीन बेकर, ठीक है। FN F11 C बेकर इसका यूजर आईडी है, क्या है? C बेकर। एक मिनट रुकना, एक
हेलो या गाइस, सी बेकर, तो उसका इसका यूजर आईडी कॉपी कर लो, पहले यहाँ पे नोट कर लो, क्योंकि मेरे पास पर्सन का नाम था, यूजर आईडी नहीं पता था, तो मैंने, क्योंकि हमें पासवर्ड तो यूजर आईडी लॉगिन करके ही अप्रूव करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करना है, तो मैंने डालना हूँ वेलकम 1 2 3, टैब दबाओ, फिर डालो वेलकम 1 2 3, टैब दबाओ और सेव कर दो। हो गया पासवर्ड रीसेट, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। अब इसकी आईडी से जाके मुझे बीपीए अपना अप्रूव करना है, तो एग्जिट ओरेकल एप्लीकेशंस, राइट, सी बेकर इसका यूजर आईडी है, कॉपी करो, इसको लॉग आउट करो पहले, ये सब मैंने बताया है। अब यहाँ डालो पासवर्ड, डालो वेलकम 1 2 3, जो अभी हमने रीसेट किया है, वेलकम 1 2 3। अब तो पहली बार लॉगिन कर रहे हैं चेंज करने के बाद, तो करंट पासवर्ड डालो वेलकम 1 2 3, न्यू पासवर्ड मैंने डाल दिया वेलकम, न्यू पासवर्ड वेलकम, फिर कंफर्म करो न्यू पासवर्ड वेलकम, सबमिट करो। ये देखो आ गया आपका बीपीए अप्रूवल के लिए, जो अभी हमने बनाया है। गैस, कैन यू हियर मी और नॉट? हेलो, Yes, sir. यस सर। जो अभी हमने बीपीए बनाया है अप्रूवल के लिए आ गया। इसीलिए हम लोग सेल्फ अप्रूवल पे लगाते थे कि जल्दी से अप्रूव हो जाए और टेस्टिंग कर लें। आगे जब रियल सिनेरियो में ऐसे ही अप्रूवल के लिए जाता है और फिर अप्रूव करना पड़ता है, तो अब हम इसको अप्रूव कर दे रहे हैं। अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। लॉग आउट कर दो, अपने यूजर पे चले जाओ, ऑपरेशंस, वेलकम, ठीक है। परचेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाओ अपनी। अब आप कर लोगे ना यूजर पासवर्ड रीसेट, अगर किसी का फंसे तो? Yes, sir. यस सर। ये भूलना नहीं, पहले ही बताया था 6826, ठीक है, बीपीए नंबर है हमारा। अब दैट इज अप्रूव्ड, अप्रूव्ड हो गया। जाके इंक्वायरी व्यू एक्शन हिस्ट्री, आप ये भी देख सकते हो किसने, देखो कैथरीन बेकर ने, से हम लोगों ने अप्रूव कर लिया, ठीक है। इसीलिए हम लोग सेल्फ अप्रूवल पे लगाते हैं, फटाक से हो जाए। लेकिन चलो ये भी चेक कर लिया। अब मैंने बीपीए बना लिया, अब मुझे जब मटेरियल चाहिए एक्चुअल, तो मैं क्या करूंगा, रिलीज, ये रिलीज, क्लिक ऑन रिलीज, यहाँ पे बीपीए नंबर डालो, सॉरी 6826 है, 6826, टैब दबाओ, देखो रिलीज में 1 आ जाएगा, ये रिलीज दिख रहा है ना 0, यहाँ पे फर्स्ट, ये देखो आ गया, मतलब पहला रिलीज आप बना रहे हो। फिर इसके बाद दूसरा रिलीज बनाओगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, तीसरा बनाओगे तो तीसरा आ जाएगा। जब भी आपको मटेरियल चाहिए होगा तो बीपीए में आपको रिलीज बनाना, देखो 6826 फर्स्ट रिलीज दिख रहा है, ऊपर लिखा है ये। अब यहाँ पे आप क्लिक करो, कौन सा आइटम चाहिए वो पूछेगा, ठीक है। अब देखो लाइन, 2 लाइन दिखाएगा, क्योंकि 2 आइटम है इसमें, हमने 2 आइटम है इस बीपीए में, तो मैंने कहा ये आइटम मुझे M1 ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ देखो क्वांटिटी पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है क्वांटिटी, बीपीए में नहीं पूछता। तो मैंने कहा था जब रिलीज बनाओगे तब क्वांटिटी पूछेगा, नीड बाय डेट पूछेगा। मैंने कहा मुझे सपोज कितनी क्वांटिटी चाहिए, अब नीड बाय डेट डाल दो आप, कि मुझे सपोज 30 तारीख को चाहिए, ठीक है। ऐसे मैंने कहा दूसरा आइटम, कंट्रोल एल कर दो, एलओवी खुल जाएगी। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? क्या हो गया भाई, हैंग हो गया क्या? 1 मिनट रुकना।
What happened? I think ये hang हो गया. दोबारा जाना पड़ेगा. परचेज ऑर्डर रिलीज. रिलीज नंबर है 6826. देखो फर्स्ट रिलीज आ गया. मैंने कहा मुझे चाहिए 2500 क्वांटिटी. नीड बाय डेट पूछ रहा. क्या हो गया? ये हैंग क्यों कर रहा है? आप लोग से भी हैंग कर रहा है क्या ये? गाइस कैन यू हियर मी? नहीं सर. यस नो सर. सर, बराबर चल रहा था शाम को. चल तो रहा था ये. अभी क्या हो गया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा. व्हाट हैपेंड यार? पूरा कैंसिल करके. वही तो. पूरा तो अभी किया है. क्या हो रहा है बार बार? इट इज टेकिंग टू मच टाइम. फील्ड एंटर किया है ना, कैंसिल नहीं होगा शायद से. डू यू वांट टू सेव चेंज? एक मिनट लॉग आउट ही कर लो पूरा. ठीक है. तो मैंने एक M1 में ले रहा हूँ, एक V1 में ले रहा हूँ, और मैंने फर्स्ट 70,000 के ऊपर मुझे चाहिए था, तो मैंने 92,500 का बनाया है. मतलब मिनिमम देखो मेरा डला भी है. एग्रीमेंट पे क्लिक करोगे तो 10 लाख का BPA है.
मिनिमम 70,000 का है। अभी तक कोई रिलीज हुआ है कितने अमाउंट का? 0। अभी फर्स्ट टाइम रिलीज कर रहे हैं इसलिए 0। अब जब आप इतना ले लोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट में दिखेगा 92,500 का रिलीज हो चुका है। राइट गैस, स्टेटस अप्रूव है। बीपीए 28 जुलाई से लेके 30 सितंबर 2022 तक वैलिड है। क्लियर गैस? ठीक है, मैंने सेव किया, क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन अप्रूव। ठीक है, 6826। अब परचेज ऑर्डर समरी में जाओ, 6826। अब एक चीज देखना, ये रिलीज वाला फील्ड जो डिसेबल है ना, अभी ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे 1 डालोगे तभी आपको रिलीज दिखेगा। देखो ये इनेबल हो गया। अब यहाँ डालो 1, टैप दबाओ। ठीक है, क्योंकि रिलीज 1 इस बीपीए का फर्स्ट इन प्रोसेस में दिखा रहा है। ये भी अप्रूवल में जाता है, इसमें भी अप्रूव किस पे गया है? व्यू एक्शन हिस्ट्री इसके पास है, हॉटन के पास है। अब हॉटन की आईडी से हमें रीसेट करना होगा, अप्रूव करना होगा। तो हॉटन की आईडी से पहले मुझे अप्रूव करना होगा। तो हॉटन की आईडी हम क्या करेंगे? हॉटन की आईडी से लॉगिन करेंगे और फिर अप्रूव करेंगे। कर लोगे? पता है आपको गैस? कर लोगे कि नहीं? Yes, यस sir. सर, कैसे करते हैं बताओ जल्दी जल्दी। Yes. जल्दी जल्दी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर पे ओके, गए, चले गए, और बताओ फिर User. यूजर पे गए, यूजर फिर क्या करेंगे? Define. यहाँ पे Define? पर्सन में सर, FN पर्सन में F11. सर, पर्सन FN सर, F11. पर्सन। थप्पड़ पड़ेगा जो बोल रहा है पर्सन का नाम डालो। FN F11 भूल जाओगे क्या? कंट्रोल FN F11 दबाएंगे। ठीक है भाई, इतना सामने तुम झूठ बोल रहे हो तो मतलब आपको सामने भी नहीं समझ में आ रहा कि FN F11 बनाया, कैसे पर्सन का नाम डाल देंगे? यहाँ पे पासवर्ड, इसका यूजर आईडी मैंने कॉपी कर लिया, पासवर्ड डाल रहा हूँ वेलकम 123, टैब दबाया, वेलकम 123, टैब दबाओ। अब सेव करो। ठीक है, क्लियर? हेलो, कौन बोल रहा था पहले कि सीधा Yes, sir. पासवर्ड पासवर्ड डालो, पर्सन डालो? कौन बोल रहा था? अरे बताओ ना, इसमें काहे की शर्म यार, हम लोग तो मतलब मेरे सीनियर तो आज भी मुझे जाने क्या क्या बोल देते हैं। कौन बोल रहा था यार? देखो तुम लोग वॉलेंट्री एक्सेप्ट भी नहीं करते हो। कोई बात नहीं। भाई सीखने के लिए बहुत झुकना पड़ता है, पता है। ओके दबाया, लॉग आउट किया, अब इसमें डाला इसका यूजर है कॉस्टन, इसका पासवर्ड क्या था? वेलकम 123। वेलकम 123, टैब दबाया। अब यहाँ पे डाल दिया वेलकम 123, टैब दबाया, वेलकम, टैब दबाया, वेलकम, सबमिट किया। ये देखो आ गया आपका ब्लैंकेट रिलीज, लिख के आ रहा ब्लैंकेट रिलीज फर्स्ट 016826 का आ रहा है 99,962, टैक्सेस एक्सेस भी लगाए हैं। इन दोनों को आप जोड़ोगे 67,000, 25,000, 99,000 जाके होगा, कुछ होगा। ठीक है, उसने पूरा दिखा रहा है ब्लैंकेट रिलीज फॉर द यूएसडी 99,962.50 रिक्वायर्स योर अप्रूवल। अप्रूव कर दो, अप्रूव हो गया, लॉग आउट कर दो, अपने यूजर्स में चले जाओ, ऑपरेशंस, वेलकम, राइट, क्लिक ऑन एप्लीकेशन डेवलपर, परचेजिंग विजन ऑपरेशन, परचेज ऑर्डर समरी,
6 रिलीज मेरा 1, टैब दबाओ, फाइंड करो, अप्रूव्ड हो गया, राइट। अब अप्रूव हो गया, अब उसके बाद अपना वही रिसीविंग कर लो। आपको पता ही है रिसीविंग करना कैसे है। सबसे पहले चेंज ऑर्गेनाइजेशन करो, M1 में आधा मटेरियल आएगा, आधा V1 पे मैंने मंगाया है, तो M1 ले लो पहले। ठीक है, और रिसीविंग कर लो, रिसिप्ट पे क्लिक करो, परचेज ऑर्डर पे जाओ, 6826 ऐसे करोगे, रिलीज वाला फील्ड इनेबल हो जाएगा, टैब दबाओ, देखो रिलीज का फील्ड इनेबल हो गया। अब डालो रिलीज 1, राइट, क्लिक ऑन फाइंड। इसमें एक ही लाइन आएगी क्योंकि एक लाइन वी, देखो ये वाली आई है AN002 V1 में हमने डाला था। अब उसमें क्लिक कर दो, डेज अर्ली। अच्छा, आप कह रहा नोटिफिकेशन आ रहा था, क्यों? डेज अर्ली का 30 जुलाई का मटेरियल है, आज आप कर रहे हो, तो रिसीव डेज अर्ली लेट का उसमें टॉलरेंस लगा हुआ है, वार्निंग दे रहा था। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। वो अगर इसी जगह वार्निंग की जगह मैं एक्शन में रिजेक्ट डाल देता सेटअप में, तो क्या करता वो, मटेरियल रिसीव करने देता? नहीं। नहीं करने देता, राइट, वेरी गुड। ये हैंग क्यों हो रहा है यार बार बार आज? हाँ ठीक है, अब डायरेक्ट डिलीवरी है तो मतलब यहीं पे सब इन्वेंट्री भी पूछ लेगा। देखो सब इन्वेंट्री का फील्ड इनेबल है, मैंने कहा डिपो में ट्रांजेक्शन कंप्लीट, टू रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। ये देखो 6826 मेरा बीपीए है, रिलीज मेरा फर्स्ट है, ये मेरा रिसिप्ट नंबर हो गया। ये मेरा रिलीज 1 और रिसिप्ट। ये मेरा रिसिप्ट नंबर हो गया। ठीक है, बस हो गया रिसिप्ट। अब जाके रिसीविंग ट्रांजेक्शन समरी पे जाके एक बार क्रॉस चेक कर लो। क्लिक ऑन ट्रांजेक्शंस, रिसिप्ट 2500 quantity and deliver 25. Guys, any problem, any hurdles, any queries regarding this? Anyone who has left? Imran has left, right? आदित्य, नमन, सच्ची, 5 ही लोग हो। कौन कौन नहीं है? नमन, हाँ नमन है, अनमोल नहीं है, और वो नहीं है। Guys, anyone, any open questions? No, sir. Anyone? नो सर, अभी तो नहीं। ओके, सो आज आपको ये करना है, पूरा बीपीए, टाइप्स ऑफ परचेज ऑर्डर, सब ये चीजें पढ़ के आना है और प्रैक्टिस करना, कम से कम 4-5 बीपीए बनाना। अब आपको दूसरा में करना है तो जाके V1 कर लो, V1 में जाके बीपीए रिलीज करोगे तो कर लेना, आप कर लेना इस बीपीए को, ठीक है, ऐसे पासवर्ड रिसेट कर लेना। तो आज आपको ये पूरा बीपीए, टाइप्स ऑफ परचेज ऑर्डर, ये सब पढ़ के आना है, ठीक है। आप स्टैंडर्ड पीओ, बीपीए भी स्टैंडर्ड पीओ बना लिए, बीपीए बना लोगे, दैट्स टू मच इनफ। कॉन्ट्रैक्ट और प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप बता दोगे ऐसे ही तो काफी है। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे ये 5 टॉपिक, एएसएल, पीओ रिवीजन और ये सब चीजें पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो इसके लिए छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ये, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा। छोटी छोटी सी फंक्शनैलिटीज हैं, जिसमें से बीपीओ रिलीज तो हमने पढ़ ही लिया आज, राइट, बीपीओ रिलीज हमने कर लिया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल हम देखेंगे एएसएल, पीओ रिवीजन, पीओ कैंसलेशन, आरटीवी, करेक्शन, पीओ कॉपी डॉक्यूमेंट। इसको पढ़ने के बाद फिर हम परचेजिंग के सेटअप्स पढ़ेंगे, फिर अप्रूवल्स पढ़ेंगे, और देन फिर आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो देने के लिए। एनीवन, एनी ओपन क्वेश्चन गाइस?
इफ नॉट No, देन sir. देन वी आर No, गुड टू sir. क्लोज। ठीक है, तो इतना आज आप Okay. करके आओगे अच्छे से। ठीक है, कल हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय। आई विल सेंड दिस रिकॉर्डिंग गाइस, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कम से कम 5 बीपीए Yes, sir. बनाना, 5 रिलीज बनाना। और ऐसा नहीं एक रिलीज के दो, एक बीपीए बनाया उसके 2-3 रिलीज बनाना, रिलीज 1, रिलीज 2, रिलीज 3 ऐसे करके, फिर उसकी रिसीविंग करना जाके मल्टीपल की। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। आई विल सेंड दिस रिकॉर्डिंग है। Not sure.